as per sequence of the syllabus, the turn comes for the P block element. Okay, but before starting the P block element, I would like to explain the periodicity. Okay, so we will discuss about some properties of elements, physical properties. Okay, so periodicity means a gradual change in properties of elements, and after some interval the properties will repeat it. Okay, so first we discuss about the atom, the size of atom or atomic size. Okay, so some properties, physical properties first now. So we will discuss about atomic size, means in the terms of radii. Second, electropositive character or metallic character. Next, electronegative character or non-metallic character. Next, electronegativity, electron gain, enthalpy, and electron affinity. Affinity. Okay, so we will compare the all these properties in a group and as well as in period. Okay, so first property, atomic size or atomic radii, electropositive character or electronegative metallic character, electronegative character or non-metallic character, electronegativity, and electron gain enthalpy as well as electron affinity. Okay, so first, what is periods or what is groups? In periodic table, there are 4 block elements. Okay, here we will draw S block element. Okay, S block. Here D block, and here P block, and below the table there are D block एलिमेंट्स. ओके, तो पीरियोडिक टेबल में क्या है? हियर 10 डिविजन्स, हियर 6 डिविजन्स, okay, 2 divisions, and here 14 divisions. Okay, division means groups. Okay, so P block having 6 groups, D block having 10 groups, S block having 2 groups, and F block having 14 groups. ओके, ये सब तो आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं क्लासिफिकेशन से. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यू स्टडीड इन क्लास 9th. ओके, सो हियर we will talk about the periodic properties. So first, atomic size. Okay, these are the groups and these are the periods. Okay, so first is atomic size. Atomic size. Okay, how we will know about the size of an atom? With the help of radii. Okay, उसके रेडियस से हम उसका साइज का अंदाजा लगा सकते हैं. Okay, so when we go from left to right, तो atomic size in a period, when we go from left to right, so atomic size decreases, and
on top to bottom or on the group. When we move from top to bottom, so atomic size is increases. Okay, why? लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज रिड्यूस हो रहा है बिकॉज इन अ पीरियड द सेल रिमेन्स सेम. मतलब जो ऑर्बिट है वो सेम है, जो उसका एनर्जी लेवल है या जो सेल है वो शेल क्या है, सेम है. तो हम क्या बोलते हैं इसे, जैसे ये क्या है, शेल्स और ऑर्बिट्स. ओके, या फिर और क्या कहेंगे इसे हम, एनर्जी लेवल. ठीक है, और दिस इज न्यूक्लियस. तो ये जो शेल्स हैं इन्हीं में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. ओके, सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज इन सेम शेल. उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, but they arranged in scattered manner. Okay, and as soon as electron will increases in a shell, proton is also increases because atom is neutral. So electron carry negative charge and proton carries positive charge. So equal amount of charges gradually increases when we move from left to right. So but protons have increases in this area only, but electrons increases in such a manner. Okay, they situated or they placed or they exist in scattered form. They found it in exist. They found in scattered form. ठीक है, तो जब भी कभी स्कैटर्ड फॉर्म है मतलब ये कभी यूनाइटेड नहीं है. डेफिनेटली ये न्यूक्लियस यदि इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो उन प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा जो न्यूक्लियस में है. ठीक है, तो होता क्या है, ये सारे प्रोटॉन्स यूनाइटेड होके उन इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इनका जो कंबाइंड इफेक्ट मिल रहा है, सारे प्रोटॉन्स का जो इफेक्ट मिलेगा वो कंबाइंड मिलेगा. डेफिनेटली वो इफेक्टिव हो जाएगा एज कंपेयर टू दो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज ऑल्सो इक्वल, बस साइन इज अपोजिट ना. तो ये जो प्रोटॉन्स है इनका अपना कलेक्टिव इफेक्ट दिखेगा, बट ये स्कैटर्ड है तो ये इतने सारे को कैसे खींच पाएगा. तो इफेक्टिव क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव हो जाएगा. हम यहाँ क्या कहते हैं, इस न्यूक्लियर चार्ज को हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ओके, तो इफेक्ट ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस. That's why the size of atom gradually decreases. Okay, but in a group, किसी भी एक ग्रुप में होता क्या है, लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन, जो भी उस एलिमेंट की लास्ट शेल है. ठीक है, तो डाउन द ग्रुप हम क्या देखते हैं, शेल्स बढ़ती जा रही हैं. मीन्स यदि फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसमें एक शेल है, सेकेंड में 2 शेल है, थर्ड में 3 शेल है, तो फोर्थ पीरियड में 4 शेल है. मतलब एक ही ग्रुप की यदि बात कर रहे हैं तो उस ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, बट उनका लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन तो कांस्टेंट है. मींस ये एक इलेक्ट्रॉन सपोज ये s1 है. ओके, सो लास्ट शेल हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ग्रुप इज कांस्टेंट और सेम. तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट शेल में आ रहा है, बट रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं. ठीक है, लास्ट शेल की मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट 95% मतलब प्लस माइनस 5% जहां तक इफेक्ट दिखता है अट्रैक्शन फोर्स का, वो उसकी रेडियस होती है. ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास से जैसे जैसे हम ग्रेजुअली ग्रुप में बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, तो डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स कम होगा. ठीक है, जिससे साइज श्रिंक तो नहीं होगा. और नंबर हर एक शेल की अपनी एक रेडियाई होती है, हर एक सेल की भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है, हर शेल की रेडियस होती है. तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है, तो डेफिनेटली साइज इंक्रीज होगा. ठीक है, तो एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. ओके,
नेक्स्ट मेटेलिक साइज भी इसमें पढ़ लेते हैं. ओके, सो एटम्स आर atoms, types of atoms में types of element. So types of elements are basically we can classify as metals and non-metals. Metals and non-metals. Okay, remember one thing, metals having metallic bond means all the atoms of metal are bonded with the metallic bond. So what is metallic bond? Okay, suppose we will take a piece of sodium. Okay, piece of sodium. So it exists in solid state, and solid state में क्या होता है, सारे के सारे particles. अब किसी भी एक सॉलिड में कोई भी पार्टिकल की बात करें, मतलब वो एटम हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, वो आयन हो सकता है. ओके, सो मेटल्स में हम मेटल मतलब एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, एटम. तो ये जो एटम्स होते हैं वो बहुत टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं. ओके, इन सॉलिड स्टेट ये जो एटम्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है. क्लियर. सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम. 281 means it has one electron in outermost shell. To become stable, sodium try to lose one electron. Okay, and कोई भी एटम तभी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है जब कोई एक्सेप्टर हो. किसी का डोनेशन, किसी एटम का डोनर बनना तभी पॉसिबल है जब कोई एक्सेप्टर हो. ठीक है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करना है, यहां पर तो सारे के सारे सोडियम है, सभी के विषय ही है, सभी को एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, बट हु विल टेक दैट रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन? नो वन इज देयर. तो होगा क्या, ये स्टेबल होने के लिए स्टेबिलिटी क्या है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ओके, और रिमेन्स एट द ऑक्टेट पोजीशन मींस लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना स्टेबिलिटी है ऑक्टेट रूल के हिसाब से. तो इससे अपना ऑक्टेट पूरा कैसे करेगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो कोई है ही नहीं जो इसको डोनेट कर सके. बेटर है ये एक इलेक्ट्रॉन यदि इसका यहां से रिलीज हो जाए तो इट विल बिकम्स 2-8. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 2-8 मींस ये स्टेबिलिटी होगा. तो होगा क्या, हर एक सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बट कोई गेन नहीं कर रहा है. तो वो रिलीज इलेक्ट्रॉन, सपोज इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो इसके रिलीज करने से प्लस बनेगा. ये प्लस चार्ज, हर एक एटम पॉजिटिवली चार्ज दिखेगा, बट इलेक्ट्रॉन्स उसके नियर बाय मोबाइल कंडीशन में होंगे, मूवेबल हैं. इस इलेक्ट्रॉन को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है. मींस जो इलेक्ट्रॉन है वो आसपास में जितने भी सराउंडेड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उसको ये मतलब कोर, ये निकल गया तो ये कोर बचा. ठीक है, इसका ये सोडियम का कोर है, लार्ज शेल को हमने निकाल दिया, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैरी कर रहा है. इसे हम कहते हैं कर्नल. ये क्या है, कर्नल्स. ओके, एंड दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन. तो कर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब आपको जो सीन दिख रहा है वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारे कर्नल्स हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री कंडीशन में, मोबाइल कंडीशन में, मूवेबल सिचुएशन में उसमें है. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है किस बात के लिए, कंडक्शन के लिए. ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पे. तो ये जो कर्नल्स, अब मेटेलिक बॉन्ड क्या है, सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 कर्नल्स इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड लेंथ. 2 कर्नल्स के सेंटर के न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम मेटेलिक बॉन्ड लेंथ, इसे क्या कहेंगे, मेटेलिक बॉन्ड लेंथ कहेंगे. और हाफ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड लेंथ, दिस इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस. क्लियर है, ये क्या कहलाएगा, मेटेलिक रेडियस.
ठीक है। सो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो जब एटॉमिक साइज खुद छोटा हो रहा है तो कर्नल तो लास्ट शेल खत्म कर चुके हैं, तो वो तो वैसे भी छोटे हैं, तो मेटेलिक रेडियस इज ऑल्सो डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड डाउन द ग्रुप डेफिनेटली एटम्स इटसेल्फ इंक्रीजेस, साइज ऑफ एटम खुद अपना इंक्रीज हो रहा है, सो देयरफॉर मेटेलिक रेडियस इज ऑल्सो इंक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर नॉन मेटल्स की यदि बात करें, सो नॉन मेटल्स आर बॉन्डेड विथ, यहां तो मेटल के एटम्स जो होते हैं वो कोवलेंट सॉरी मेटेलिक बॉन्ड से बॉन्डेड थे। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल एटम्स, किसी भी कोई नॉन मेटल आप ले लीजिए, सपोज हमने क्लोरीन लिया, ओके, सो क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7, it has 7 electrons, it requires 8 electrons, so it needed one more electron, but other chlorine is also having same requirement, so ना ये लूज कर सकता है ना ये दे सकता है, ओके। सो क्या करेंगे, शेयरिंग, तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, ओके, शेयरिंग करने, शेयरिंग करने के बाद ये इस तरह से बाउंडेड हो जाएंगे, ठीक है। ये ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनने का, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, तो ओवरलैपिंग होने पे मींस यदि आप इसे और दूसरी शीट, सपोज ये पीस ऑफ पेपर है, ये 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, अब आपको ये कह रहा है कि इन्हें बॉन्ड कर दो, इन्हें जोड़ दो, इन्हें मजबूती से जोड़ना है आपको, ठीक है। तो यदि आप इन दोनों शीट को पास लेके आओगे और सोचोगे कि हम यहाँ साइड में पेपर की शीट पे साइड में हमने चलो कुछ ग्लू या फेविस्टिक या कुछ भी लगा दिया और इसे ऐसे कर दिया, तो एक ये ज्वाइंट करने का तरीका है, ठीक है, बॉन्ड करने का तरीका एक ये है, इस तरह से, मतलब ऐसे आप लाओगे। और दूसरा बॉन्ड करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर इसके मार्जिन पर थोड़ा सा ग्लू लगाइए और इस पेपर को उठा के इसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए, तो पेस्ट करने से ओवरलैपिंग हो गई, और अब क्या होगा, पहले ये टोटल लेंथ हमें मिले थी, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का सम हो रहा था, अब हमने क्या किया, इसे ओवरलैप कर दिया, ओवरलैप करने से टोटल डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, लेंथ कम हो रही है, तो इसको ओवरलैप करने से अब हमें ये 2 सेंटीमीटर नहीं मिलेगा, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर नहीं मिलेगा यदि हम इसे बहुत टाइटली बाउंड कराना चाह रहे हैं, मजबूत जोड़ करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कोवलेंट बॉन्ड में भी ऐसे ही ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग होने से इनकी यदि हम एटम के फॉर्म में सोच रहे हैं तो दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस से ये डिस्टेंस रिड्यूस हो चुकी है, ओके। सो दिस इज कोवलेंट बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ, और उसका हाफ, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। तो नॉन मेटल के केस में हम क्या डिस्कस करते हैं, कोवलेंट रेडियाई, मेटल के केस में हम क्या डिस्कस करेंगे, मेटेलिक रेडियाई। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम एटॉमिक रेडियाई क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए नोबल गैस को छोड़ के 18 ग्रुप मेंबर्स को छोड़ दे यदि, तो बाकी कोई भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उनके वो एलिमेंट रिएक्टिव है, रिएक्टिव है तो उनके एटम्स भी बहुत रिएक्टिव है, तो एटम रिएक्टिव होने से क्या करेंगे, वो कंबाइन हो जाते हैं, तो कंबाइन होने का फॉर्म क्या था, मेटल्स का मेटेलिक बॉन्ड और इनका कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जो नोबल गैस है वो तो उनकी रिएक्टिविटी तो बहुत नहीं है, तो वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो याद रखेंगे कि लेफ्ट टू राइट आप जा तो रहे हो, साइज तो रिड्यूस हो रहा है, बट 18 ग्रुप के मेंबर्स का, ये मत सोचना कि 17 के बाद 18 आया तो और रिड्यूस हो जाएगा, नहीं, उसका साइज तो अपने अपने पीरियड में सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो तो प्योर एटम के फॉर्म में है, मतलब उसके न्यूक्लियस से लास्ट ऑर्बिट के तक की हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। यहां तो कोर बन गया, शेल ही खत्म हो गए मेटल्स में, नॉन मेटल में ओवरलैपिंग हो गई, तो इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज रिड्यूस होगा एक्सेप्ट 18 ग्रुप मेंबर्स। क्लियर है? तो इस तरह से ये कोवलेंट रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, क्योंकि जो ओवरलैप पार्टिकल्स हैं वो
खुद भी तो डाउन द ग्रुप बड़े हो रहे हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। क्लियर है? तो इस तरह से ये एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस था। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सेकेंड इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। Second is electropositive character. Okay. So electropositive character means when an element loses electrons and form positively charged ion or become positively charged ion. So this is called electropositive character. This is the tendency of element. Okay. So suppose sodium. Okay. It has 281 configuration. To achieve stable configuration or noble gas configuration, it will loses one electron and becomes positively charged ion. Okay, this is sodium ion, cation, 2,8. Its configuration is 2,8. Okay, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके एक्वायर क्या कर रहा है, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है ड्यू टू फॉर द स्टेबलाइजेशन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी होती है, मेटल्स की होती है. दैट्स व्हाई वी कॉल मेटेलिक कैरेक्टर आल्सो. मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, both the things are same. Okay, so when we move from left to right, the atomic size decreases. So it is very difficult to release electrons from the outermost shell. That's why when along the period electropositive character is decreases and down the group it increases. Why? Because atomic size gradually increases when we go from top to bottom. So nucleus से डिस्टेंस लास्ट शेल की बढ़ती जा रही है साइज बड़ा होने से, तो आसानी से न्यूक्लियस का होल्ड कम हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज होगा. सो मेटेलिक कैरेक्टर इज आल्सो इंक्रीजेस. ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. ओके, नॉन metallic character. Okay, so tendency to gain electron and form negatively charged ion or anion is called electronegative character. So this behavior is shown by the non-metals. Okay, because non-metals having 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell, so to become stable they need 2, 1, 2 or 3 more electrons. Okay, for example chlorine, the electronic configuration of chlorine is 287. Okay, it needed 1 electron, so by gaining 1 electron it acquires 288 configuration. Okay, so anion. ठीक है, तो अब हम इसे पीरियोडिसिटी देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर में. मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं. Electronegativity is different thing. Okay, so when we move from left to right, because size of atom gradually decreases, किसी भी एटम का साइज डिक्रीज होना means it shows the effective nuclear charge becomes higher and higher and higher. Okay, so effective nuclear charge, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है. तो न्यूक्लियस जब इफेक्टिव होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से, ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की. और वैसे भी हम जैसे ग्रुप 17 तक पहुंचते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बचती है, तो वो उस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिवली चार्ज एनायन बनाता है. सो लेफ्ट टू राइट इट इज इंक्रीजेस just opposite to the electropositive character or metallic character, and down the group this is decreases. Clear है? Third property, fourth property, electronegativity.
फर्स्ट वन इज electronegativity. This is different from the electronegative character. Electronegativity क्या है? The tendency to attract shared pair of electron by an atom. किसी भी एटम की टेंडेंसी है जो कि शेड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, बॉन्ड बनने के बाद मतलब ये टेंडेंसी हम कहाँ देख सकते हैं? मॉलिक्यूल में. ये किसी एटम की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, किसी एलिमेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये रिलेटिव वैल्यू है. मीन्स वो किससे अटैच है इस बात पे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर हम देख सकेंगे. आइसोलेटेड एटम में आप नहीं बता सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल HCl. Okay, so how this formed by the mutual sharing of electrons. Okay, so when they shared electrons mutually, okay, this electron, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन का. ओके, क्लोरीन having 7 electrons in outermost shell. Okay, so by sharing they form HCl. Okay, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पेयर भी बीच पे होना चाहिए. बट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर क्लोरीन अट्रैक्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ. उसने अपने तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रखा है, पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ. बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, शिफ्टिंग ऑफ पेयर होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ओके, सो बाय दिस वे chlorine acquires partial minus charge and hydrogen possesses partial positive charge. Okay, by this way, yeah, due to the electronegativity difference, covalent bond becomes polar. म्यूचुअल शेयरिंग है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो शिफ्ट हो जाते हैं. ओके, सो अब ये इस शेयर पेयर को अट्रैक्ट कौन कर रहा है? क्लोरीन का न्यूक्लियस. तो डेफिनेटली व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, so because size of atoms decreases, therefore effective nuclear charge is dominant and it attracts the shared pair of electron. So electronegativity increases, and when we go from left top to bottom, electronegativity decreases. Got it? Next is fifth one, ionization enthalpy. Okay, ionization enthalpy. What does it mean? Ionization enthalpy we can define as the minimum amount of energy required an electron from outermost shell of an atom. Okay, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. ओके, कैसे? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. तो यहां एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, इसमें एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे, आइसोलेटेड गैसियस एटम. ओके, सो फाइनली आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. Isolated gaseous atom. फिर से आइसोलेटेड गैसियस एटम के लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, मिनिमम से मिनिमम, हम उस बात को देखेंगे कि जितने में वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, वो कहलाती है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको फर्स्ट IE1 कहते हैं. सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगेगी IE2, थर्ड को IE3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते आप इतनी आसानी से. ठीक है, सो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे एटम का साइज छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा. ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम इट इज डिक्रीजेस. साइज बढ़ा रहा है तो डिक्रीज होगी. ठीक है, कुछ फैक्टर्स
फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखना है आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। ओके, इतना तो कंफर्म है कि हम आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। व्हेन वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, सपोज A, by losing one electron it becomes A plus, ठीक है, A plus। A और A plus के साइज पे आप ध्यान देंगे। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद, प्रोटॉन तो रिमूव नहीं हुए, तो इलेक्ट्रॉन एक रिमूव होने के बाद नेगेटिव चार्ज का एक कमी हो जाना, और प्रोटॉन्स और ज्यादा इफेक्टिव हो गए, और ज्यादा डोमिनेटिंग हो गए, तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो रिमेंबर वन थिंग, cation is always smaller than the parent atom and vice versa for anion. Anions are always larger than the parent atom. Okay, so A plus is smaller than A. अब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन और ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं क्योंकि साइज छोटा हो गया है। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा लगेगी। ओके, सो एंड थर्ड के लिए तो और ज्यादा लगेगी। इस तरह से इससे ज्यादा ये और इससे तो बहुत ही ज्यादा ये होगी। ठीक है, तो एक तो फैक्टर ये हो गया। सेकेंड, आप इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करा रहे हो? जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आप कह रहे हैं, सपोज दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस पी डी एफ, ये चार आपने सबशेल पढ़े हुए हैं। एस का शेप स्फेरिकल, पी डबल, डी डबल डबल एंड एफ तो मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, जितनी सिमेट्री ज्यादा होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी उतनी लो होती है। और वैसे भी एनर्जी वाइज देखें तो ये सीक्वेंस है हमारे पास, ये सीक्वेंस है। तो यहां पर आप देखेंगे एस पी डी एफ में यदि हम कंपेयर कर रहे हैं, सपोज आपने इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो एस ऑर्बिटल में है या एस सबशेल में है, तो डेफिनेटली उससे रिमूव कराने के लिए, सॉरी, एस की एनर्जी सबसे कम है, सिमेट्रिकल है, मतलब न्यूक्लियस का पेनिट्रेशन एस पे बहुत ज्यादा होगा। जिसकी एनर्जी कम होती है उसी पे तो न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है। क्लियर है? इसे अच्छे से ध्यान रखिए। तो एस के इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा टाइटली बाउंडेड होते हैं बाय द न्यूक्लियस एज कंपेयर्ड टू पी और डी और एफ। तो ये सीक्वेंस है उनकी एनर्जी का, इसीलिए इनको न्यूक्लियस का पेनिट्रेशन पावर जस्ट अपोजिट होगा। ये क्या है? एनर्जी। ठीक है, एंड पेनिट्रेशन पावर of nucleus on subshell, penetration power of nucleus on subshell. So S पर सबसे ज्यादा 50, then D, then F. Okay, so when you want to remove electron from S, so it is more difficult as compared to P. S से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालना मुश्किल होगा बजाय P के, P का फिर भी मुश्किल है डी से। इस तरह से ये होल्ड न्यूक्लियस का बता रहा है। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर आपका ये हो गया। थर्ड, आप किस शेल से निकाल रहे हैं? मान लीजिए आप एस से तो निकाल रहे हैं, लेकिन सेकंड शेल 2s से निकाल रहे हैं, और एक केस में आप 4s से रिमूव करा रहे हैं। सो 4s इलेक्ट्रॉन विल बी इजीली रिमूव्ड बाय, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू 4s इज सो फार एज कंपेयर टू 2s। तो जितना दूर होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही वीक होता जाएगा और हमें एनर्जी कम लगेगी। ठीक, फोर्थ पॉइंट फैक्टर जो है वो है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। ओके, इफ यू वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P3, दिस इज P3 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एंड दिस वन इज P4. Okay. So in 11th class you have studied about the full filled and half filled orbitals are more stable as compared to partially filled orbitals.
तो ये जो हाफ फील्ड है इसमें सिमेट्री ज्यादा है और इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, इसलिए ये स्टेबल है। तो स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना तो वैसे भी मुश्किल होगा। ओके, सो आप P3 की जो एनर्जी के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू P4 और P5। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। gain enthalpy and electron affinity. Electron gain enthalpy and electron affinity. Okay. Enthalpy means energy. Enthalpy क्या है? Energy. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, कैसे? देखिए, सपोज ये एटम है, ठीक है, ये एटम है, एक कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम का पार्ट नहीं है। इट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड वेरी फार फ्रॉम द एटम, मतलब ये इसका पार्ट नहीं है। ये कोई अट्रैक्शन फोर्स इस एटम के थ्रू नहीं फील कर रहा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी जीरो। इसकी एनर्जी क्या होगी? जीरो। रेस्ट पे है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एनर्जी जीरो। अब सपोज ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के थ्रू, मान लीजिए ये यहाँ है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स इसमें राइज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली आ रहा है और यहां तक आ रहा है। ठीक है, उसके लास्ट शेल तक आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब आता है तो जीरो से, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स है और यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट यदि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो एनर्जी तो रिलीज होगी। ओके, और कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में यदि रिपल्शन है तो वहां एनर्जी हाई होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू वो आ रहा है, तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए आ रहा है। और जब भी कभी हम जीरो से कुछ कम करते हैं तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव इसीलिए होती है। आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों लिखते हैं? इसीलिए। तो वो जब इसका पार्ट बन रहा है तो उसने एक एनर्जी रिलीज की है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? अब बात आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्चुअल में ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह रहे हैं। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या? एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसके अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा करने की, अट्रैक्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसका था ही नहीं कभी, जैसे आपने क्लोरीन में देखा है ना। तो क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया और वो Cl नेगेटिव बन गया, एनायन बन गया। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको अट्रैक्ट करना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सिंपल। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझेंगे। लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हो, साइज छोटा हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आप राइट साइड पहुंचते जाएंगे उसका एनर्जी जो रिलीज होने का अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा हो रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जितना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इंक्रीजेस। अब हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ क्या होगा? डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ एक एक्सेप्शन केस आप डिस्कस करेंगे, वो ये, जब भी हम पी ब्लॉक की बात कर रहे थे, पी ब्लॉक में 6 है ना, P1, P2, P3,
P4, P5 एंड P6। ओके, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन इनका। तो फर्स्ट मेंबर जो है मतलब सेकेंड पीरियड का हर एक फर्स्ट मेंबर सेकेंड पीरियड का फर्स्ट मेंबर क्या थे वो? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, इनमें से भी कार्बन तो शेयरिंग करता है, तो ये जो बनते हैं, सॉरी ये जो एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे छोटा साइज इसका है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन दीज टू एटम्स एलिमेंट्स। क्लियर? नाइट्रोजन के नीचे आपने देखा फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। तो साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन क्लोरीन और साइज ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन सल्फर, या ये कह सकते हैं साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन फॉस्फोरस। क्लियर? अब वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है छोटे साइज में, वही इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटी सी जगह में, क्योंकि सेम ग्रुप यदि है तो लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो सेम। सो fluorine having 7 electron in outermost shell and chlorine is also having 7 electrons, but size of fluorine is this and chlorine is this. Okay, ये 7 electrons इस छोटे से एरिया में, छोटी सी सराउंडिंग है, छोटे से एरिया में 7 electrons situated in case of fluorine, and these 7 electrons are spreaded in larger area as compared to fluorine. ठीक है, तो होगा क्या, वो जो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है उसे इनकी डेंसिटी ज्यादा है, ये 7 इलेक्ट्रॉन छोटे एरिया में मीन्स ये डेंसर है, इनका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये अट्रैक्शन न्यूक्लियस का तो दिख रहा है, तब तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, बट आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसे रिपेल भी तो कर रहा है। तो जितनी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होगी उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। क्लियर? तो होगा क्या, यहाँ इसमें जो एनर्जी अट्रैक्शन के कारण रिलीज होनी थी, अब वहां रिपल्शन के कारण थोड़ा कम रिलीज होगी। तो एक बात याद रखेंगे, जो फर्स्ट मेंबर्स हैं, ड्यू टू द एक्सट्रीमली स्मॉल साइज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लिटिल बिट लोअर। ठीक है, उनकी इन मेंबर्स से कम हो जाती है, जबकि छोटा साइज है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा आना चाहिए, बट इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम आती है सेकेंड मेंबर से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इसमें डिफरेंस था।